Welcome to our Oikos Online Sunday. We're so glad that you're here with us. Join in as we worship together. Yes, Lord, you are so beautiful. Beyond description. Yes, Father, we won't take your word and shine it all around. Yes, Father, it's our reward to give you glory. We shouldn't seek the crown, just give you glory because you deserve it all. King of kings and Lord of lords, you are Lord. तेरी स्तुति हम करेंगे, आराधना भी दिल से।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Dear Lord, we thank you for India and our government. We ask for the peace and comfort of all families and friends who have lost their loved ones due to COVID-19. We pray for a special blessing and protection over our health and safety workers during this time. We pray for the peace and prosperity of Israel and the rest of the world. In your name, we make this prayer. Amen. And now we have my father, our father, my father, our father, our father, Pastor Rajneesh Das and Sharian Das are bringing God's word. I heard that introduction about our father. और जैसे ही आज मैंने हमारा जो परिचय किया गया था और उसमें हमें मेरे पिता, हमारे पिता के बारे में बताया गया। I'm sure many of you would have remembered the prayer of our father. और मुझे लगता है हम में से बहुतों को वो प्रार्थना याद होगी जो हम है हमारे पिता के बारे में कहते हैं। And in that prayer there's a line that says, "Forgive us our sins." और उस प्रार्थना में एक बात लिखी गई है कि तू हमारे पापों को क्षमा कर। That brings us to today's topic. और आज का जो शीर्षक है हमारे प्रचार का वो है Forgiveness. क्षमा करना।
we will be talking about forgiveness today. आज हम क्षमा करने के बारे में बातें करने वाले हैं। So we will do it in 2 parts. Today will be part 1. और हम इसे 2 भागों में करेंगे। आज हम पहला भाग कर रहे हैं। So are you ready? क्या आप तैयार हैं? This is something that is not just a talk, but this is something that will be a blessing to you for the rest of your life. और आज हम केवल आपसे बस बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं, परंतु आज जो हम आपसे कहने वाले हैं वो आपके जीवन को बदल के रख देगा। So one day Peter comes to Jesus एक दिन पतरस यीशु के पास आते हैं। and he's asking Jesus, यीशु से पूछते हैं, Lord, how many times shall I forgive my brother? वो पूछते हैं कि प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं When he sins against me or does something wrong against me? वो मेरे खिलाफ कोई पाप करता है या मुझे कुछ तकलीफ पहुंचाता है। And then he even gives Jesus an answer by saying up to 7 times. और फिर वो यीशु को खुद जवाब भी देता है और पूछता है कि 7 बार माफ करना ठीक होगा। So Peter is trying to say, like, normally we forgive, we keep a count, we say 2 times, 3 times I forgive that person, but 7 times. So Peter is trying to be generous here. और यहाँ पे ऐसे लगता है मानो पतरस कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम किसी को क्षमा करते हैं तो 1 बार करते, 2 बार करते, 3 बार करते हैं, लेकिन यहाँ पतरस जो है ये दिखाने की कोशिश में है कि वो कितना उदार है और इसलिए कहता है कि 7 बार ठीक होगा। And Jesus replies to Peter. और यीशु पतरस को जवाब देते हैं। Guess what Jesus said? तो सोचिए पतरस को क्या जवाब मिला। He says, I tell you, not 7 times, but 70 times 7. और यीशु कहते हैं कि केवल 7 बार माफ करना ठीक नहीं है, परंतु 70 गुना 60 इतने बार माफ करना जरूरी है। I'm sure Peter would have got a shock. मुझे लगता है ये सुन के पतरस को बहुत ही धक्का लगा होगा। I mean, how are you going to keep a count of so many times you forgive the same person? और वो सोच रहा होगा कि अभी किसी को अगर माफ करना है, क्षमा करना है, तो उसकी मैं गिनती कैसे रखूं कि मैंने उसे कितनी बार क्षमा किया है। We'll have to keep a register. वो शायद हमें एक किताब में लिख के रखना पड़े। Maybe appoint an assistant to keep all the record of how many times you're forgiving somebody. या हमारे संग कोई सहायक या असिस्टेंट को लगाना पड़ेगा जो उसकी वो बात लिख कर रखे। In other words, Jesus is saying you got to forgive a person so many times. In fact, keep forgiving the person. और यीशु जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी को क्षमा करना है तो लगातार करते रहना है। And then Jesus goes on to tell Peter a story. और फिर यीशु जो है पतरस को एक कहानी सुनाते हैं। I guess you want to hear the story as well. और आप वो कहानी सुनना चाहते हैं? That story is found in Matthew chapter 18, verse 21 to 35. और मत्ती के 18वें अध्याय में 21 से लेकर 35 वचन में ये कहानी लिखी गई है। I'll read it out for you. ये कहानी हम आप ही को पढ़ के सुनाएंगे। Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. And as he began the settlement, a man who owed him 10,000 talents was brought to him. Talents is like a form of a currency. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had to be sold to repay the debt. The servant fell on his knees before him and he says, "Be patient with me." He was begging the king, "And I will pay back everything." You might have heard that before in your own life. The servant's master took pity on him, cancelled the debt and let him go. Wow. But when the servant went out, guess what happened? He found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. Denarii is a smaller currency. He grabbed him and began to choke him. "Pay back what you owe me," he demanded of that servant. His fellow servant fell to his knees and begged him, "Be patient with me and I will pay you back." But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened,
they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. "You wicked servant," he said, "I cancelled all that debt of yours because you begged me. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant, just as I had on you?" In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Jesus goes on to say this. "This is how my heavenly Father will repay or will treat each of you unless you forgive your brother from your heart." ये कहानी हम 23वें वचन से आगे पढ़ेंगे। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों के लेखा लेने चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो दास 1000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, "यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए।" इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, "हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा।" तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसे मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, "जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे।" इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, "धीरज धर, मैं सब भर दूंगा।" उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, "हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था?" और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। और फिर यीशु आगे कहते हैं, "इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा." That's the story Jesus told Peter. और ये कहानी यीशु ने पतरस को सुनाई। So what's the moral of the story? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? You see, the Bible is very clear. देखिए, जो बाइबल है बहुत ही स्पष्ट है। If we do not forgive those who have sinned against us or have done something wrong to us, God cannot forgive us. अगर जिन लोगों ने हमारे खिलाफ कोई पाप किया है या हमें तकलीफ पहुंचाई है और हम उन लोगों को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा नहीं कर सकते। Moreover, unforgiveness will always imprison us. और अगर आगे देखा जाए तो मानो ये होगा कि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो एक तरह से अपने आप को हम बंदी बना लेते हैं। I mean, how do you get imprisoned in? तो आप बंदी कैसे बन सकते हैं? We get imprisoned with our wounding that is there in our heart. Somebody hurt us or wounded us and we are put into a bondage. It's like having handcuffs
you know. और जब कोई हमें घायल करता है, हमें चोट पहुंचाता है और हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो मानो एक तरह से अपने आप को ही हम बंदी बना लेते हैं, हम एक तरह से अपने आप को ही हथकड़ी पहना लेते हैं। It's like putting a handcuff of bitterness. हो सकता है ये एक नफरत करने की या कड़वाहट की जो है एक हम हथकड़ी पहन लेते हैं। We could be in bondage because of our anger. We are so angry and we are bound with the spirit of anger. या किसी बात से हमें बहुत गुस्सा आ रहा और इतना क्रोध भर गया है हमारे अंदर कि उसकी वजह से हम अपने आप को ही बंदी बना लेते हैं। Or somebody offended you so deeply, you are imprisoned with a desire, strong desire for revenge. या हो सकता है किसी ने आपका अपमान किया है और आपके अंदर इतना क्रोध भर गया है कि अब आप चाहते हैं कि आप की जो भावना, आपके जो बदले की जो भावना है वो यह है कि आप उससे बदला लें। Now you might be thinking that, well, no, I have forgiven. आप सोचते होंगे नहीं, मैंने तो उस व्यक्ति को या इस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है। Well, we will look into that part. तो हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। But as we are talking to you, some old memories might come back to your mind. हो सकता है जैसे आज हम आपसे बातें कर रहे हैं तो कुछ पुराने बातें आपको याद आ जाए। It is God's way of reminding you that you need to forgive in this particular area of your life. अगर वो बात आपको याद आ रही है तो ये परमेश्वर के तरफ से एक इशारा है कि आपको उस व्यक्ति को अपने जीवन में क्षमा देना चाहिए। You might be saying, but you know, that happened a long time ago. आप कह सकते हैं ये जो बात है ये बहुत पुरानी है। You know, time has taken care of it. कि समय बीतता गया और सब ठीक हो गया। You know, everything is gone and forgotten. और सब कुछ हम भूल गए हैं। Let me tell you, beloved ones, प्रियजन, मैं आपको बता दूं, time does not heal. समय किसी घाव को भरता नहीं है, Jesus heals. यीशु उस घाव को भर सकते हैं। So we might be imprisoned with these bondages of anger or a sense of revenge or hatred or bitterness. हो सकता है हम ऐसी बातों को लेकर अपने आप को ही बंदी गृह में बांध देते हैं, जैसे हमारे अंदर कोई कड़वाहट है, कोई गुस्सा है, कोई बदले की भावना है। And this can have a deep and a devastating impact on our life. और हो सकता है इसकी वजह से हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़े वो प्रभाव बहुत ही विनाशकारी हो। Which areas of your lives? आपके जीवन के कौन से हिस्से में ऐसी बात है? In your spiritual life. और आपके आत्मिक जीवन में ऐसा विनाशकारी कार्य हो सकता है। Maybe in your emotional area of your life. या आपके भावनाओं में हो सकता है। Or in your mind, the mental area of your life. या आपके मानसिक रूप में हो सकता है। And to some extent, maybe even in your physical area of your life, your health. और कुछ हद तक हो सकता है आपके स्वास्थ्य या आपके शरीर में जो है ऐसे विनाशकारी हालत पैदा हो सकते हैं। We do believe that unforgiveness can even lead to illness or sickness sometimes. और हम ये मानते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अंदर जो क्षमा न करने की भावना है उसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां जो है उत्पन्न हो सकती है। I can tell you stories of individuals after many years when they released forgiveness to the person were instantly healed, even though nobody prayed for their healing. मैं बहुत सी कहानियां मुझे याद आती हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी कितनी कहानियां बता सकता हूं जहां पर किसी ने किसी के लिए प्रार्थना नहीं की कि उन्हें चंगाई मिले, परंतु जब उन्होंने किसी एक व्यक्ति को क्षमा किया दिल से, तब जाके उन्हें अपनी बीमारी से जो है चंगाई प्राप्त होती है। But if we do not forgive, some of the areas of our life can be deeply damaged. अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन के ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें बहुत गहरा प्रभाव हो सकता है और बहुत गहरी जो है हमें चोट पहुंच सकती है।
Like you just heard the story that Jesus told Peter, there was that servant who was unwilling to forgive the servant who owed him money. और हमने अभी इस कहानी में सुनी जैसे यीशु पतरस से कह रहे थे कि एक दास को अपने कर्ज से क्षमा मिल गई, परंतु वो जाकर अपने दास को, अपने संगी दास को क्षमा नहीं करता है. We might have done the same. हो सकता है हमने भी ऐसा ही किया हो. We demand that the other person pays up what they owe to us. और हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप मेरे कर्जदार हो तो आपको वो कर्ज चुकाना चाहिए. So we hold that in our hands, in our fists. और इसीलिए उस बात को लेकर हम एक मुट्ठी में उसे बंद कर लेते हैं. You're wondering, what do you hold in your fists? आप सोच रहे हैं आपकी मुट्ठी में आप क्या बंद कर रहे We are हैं? holding that sin, that hurt, that pain, the unforgiveness. हम अपनी इस मुट्ठी में जो है उस पाप को, उस घाव को, उस चोट को, उस क्षमा न करने की भावना को पकड़े रखे हैं. The desire to take revenge. और एक ऐसी इच्छा हमारे अंदर जाहिर होती है कि हमें बस बदला लेना है. The unwillingness to let go. और हम उन बातों को अपनी इस मुट्ठी से छोड़ना ही नहीं चाहते. But what we don't realize that it is damaging and destroying us. लेकिन हम ये तो भूल जाते हैं कि ऐसा करने से जो नुकसान है वो हमें ही हो रहा है, जो चोट है वो हमें ही पहुंच रही है. It's like drinking poison and expecting the other person to die. मानो ऐसे हम कर रहे हैं कि हम जो विष है, जहर है, उसे खुद पीते हैं और इच्छा रखते हैं कि सामने वाला मर जाए. Now I know this is a sensitive subject. मैं जानता हूँ ये जो शीर्षक है, ये जो बातें हम आपसे कह रहे हैं बहुत ही संवेदनशील है. And we do not normally want to acknowledge the fact that there is unforgiveness towards a particular person or an event or a situation that happened in your life. No matter whether it happened today, yesterday, last month, last year, 10 years back, or maybe many, many years ago. कई बार हम जो है ऐसे हालात में आ जाते हैं और हम ये कबूल ही नहीं करना चाहते, ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर जो है, जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, जो न क्षमा करने की भावना है, वो हम जो है छोड़ना ही नहीं चाहते हैं. और ये शायद अगले दिन की बात हो, या ये कुछ महीने पहले की बात हो, या कुछ साल पहले की बात हो, या बहुत साल पहले की बात हो. So there could be so many reasons इसीलिए ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं why we are not willing to forgive. कि हम क्षमा क्यों नहीं करना चाहते. But the question and the choice each one of us have to make is this. और आज जो प्रश्न हमें अपने आप से करना है और एक चुनाव जो करना है वो ये है, Do we still want to be trapped or imprisoned in our hurt or our pain or hatred or even sickness? क्या हम आज भी अपने उस कड़वाहट में, उस बीमारी में या उन हालातों में आज भी हम बंधे रहना चाहते हैं, फंसे रहना चाहते हैं? Or let me ask you another question. एक और सवाल आपसे करेंगे, Do you want to be free? क्या आप आजाद होना चाहते हैं? You know, some of you might be confused whether is there unforgiveness in my heart against that particular person. हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे जो भावना है, क्षमा न करने वाली जो भावना है, क्या मेरे अंदर है? You know, if you have a doubt, I have a simple test. और अगर आप संकोच में हैं और आप नहीं समझ पा रहे, तो आपके लिए समझना आसान है. Say for example, there is this person who offended you and you want to know whether you have forgiven that person or not. और हो सकता है एक उदाहरण हम दे रहे हैं. आप सोचिए कि एक ऐसा फलाना व्यक्ति है और आप सोच रहे हैं कि मैंने उसे क्षमा किया या नहीं किया है, तो क्या करना चाहिए? When you talk to that person, जब आप उस व्यक्ति से बात करेंगे, can you look into that person's eyes and hold a conversation? क्या आप उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर उनसे बातें कर सकते हैं? Because if there is unforgiveness in your heart, some hatred, bitterness, anger, pain, wounds, you will not be able to look into that person's face and be able to have a conversation. तो अगर आपके दिल में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी ईर्ष्या है, कोई भी कड़वाहट है, क्षमा न करने की भावना है, तो आप उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर उनसे बातें नहीं कर पाएंगे.
Here's another test एक और परीक्षा है to know whether you have forgiven that person or persons. It could be one, it could be multiple people. ये देखने के लिए कि आपने उस एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को या उससे ज्यादा अगर व्यक्ति है, मैं उन्हें क्षमा कर पा रहा हूँ या नहीं, ये हम देख सकते हैं। Imagine you are in a room with a friend and you're having a lovely conversation. अभी सोचिए आप एक कमरे में हैं, आपके साथ आपके दोस्त बैठे हैं और बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। And this concerned person walks into the room. और ये जो व्यक्ति है अब आपके कमरे में आ जाते हैं। And the minute that person walks into the room, something happens to your heart. तो जैसे ही वो व्यक्ति उस कमरे में दाखिल होते हैं, आपके दिल में कुछ तो होता है। The joy just went out. आपकी जो सारा आनंद था मानो जैसे वहाँ से बह गया। It kind of leaked from your heart, went down your clothes and came off through your shoes. हो सकता है ऐसे कि आपके दिल में जो सारा आनंद, सारी खुशी थी, वो एक तरह से चू कर गल कर जो है आपके पैरों की तरह उतर गई। Or you're looking the other way. या आप वो जहाँ से आ रहे हैं वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। And you can sense anger in your heart or pain in your heart or desires of revenge in your heart. I mean, your emotions just go for a flip. और आप महसूस करते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, आप जो है क्षमा नहीं कर पा रहे हैं या आपको कैसे तो भी अजीब लगने लगता है, आपकी भावनाएं जो है एक तरह से उथल पुथल होने लगती है। These are sure indications that there is unforgiveness in your heart against a person or an individual or people or even in a situation that happened in your life. और ये सारी बातें हैं, इस बात को दर्शाती हैं कि आपके अंदर अभी भी क्षमा न करने की भावना है। So now you know. अब आप जानते हैं। And if old memories are coming back or some scenes are coming into your mind, then maybe God is speaking to you. अगर कुछ पुराने ख्यालात, कुछ पुरानी बातें आपको अचानक से याद आ रही है और आपको लगता है कि शायद आपने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है, तो ये तो परमेश्वर के तरफ से आपके लिए एक इशारा है। So, what is forgiveness? क्षमा करना क्या होता है? If you look at the Oxford Dictionary, this is how it defines it. और अगर आप शब्दकोश में क्षमा के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसका जो उसकी जो अर्थ है वो आपको हम बताए। It says to remit, let off, cease to resent or pardon. और इसमें लिखा हुआ है कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं, हम किसी को एक तरह से छोड़ देते हैं, एक तरह से उन्हें जाने देते हैं, उनके तरफ जो हमारा एक तरह से जो हम कर्जदार होते हैं उस कर्ज को हम माफ करते हैं। You know, when we forgive, we are letting the other person go. और जब भी हम किसी को क्षमा करते हैं तो मानो हम जो है उन्हें इन बंद मुट्ठी से छुटकारा देते हैं, उन्हें जाने देते हैं। Exactly, it's like opening our hands and releasing them. हम अपनी मुट्ठियों को खोलकर उन्हें एक तरह से आजाद करते हैं। It's a choice to forgive. आपको चुनना है कि आप किसी को क्षमा करें। Not holding on to, but letting go. उन्हें पकड़ के नहीं रखना है, परंतु उन्हें आजाद करना है। It is a choice to cancel the debt the other person owes you. जो व्यक्ति आपके कर्जदार है, उस कर्ज को माफ करने के लिए आपको चुनना है। Here's a beautiful way of looking at it. और एक अलग तरीके से भी हम इसे देख सकते It हैं। is a choice to stand with Jesus. ये हमें चुनाव करना है कि हम यीशु के साथ खड़े रहे। It releases God and it releases you. आपको जो है छुटकारा मिलता है और एक तरह से परमेश्वर को भी छुटकारा मिलता है। You see, when we forgive, जब हम क्षमा करते हैं, we choose to set the person free, the person who offended us, we just let them go. तो जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो ये हमारी तरफ से एक चुनाव होता है कि हम उन्हें आजाद कर सके, हालांकि उन्होंने आपके खिलाफ कुछ किया हो और आपको उससे बहुत तकलीफ पहुंची हो। So we let them go and we let the offense that is attached to it, we let it go. और हम उन्हें आजाद करते हैं, लेकिन खास तौर से उनकी तरफ से की गई बातों की वजह से जो हमें अपमान महसूस हुआ है, उस अपमान को हम जाने देते हैं। So we don't hold on to the resentment any longer. We don't hold on to the bitterness that is there in our hearts. We just
release it. तो जो नाराजगी हमें उस व्यक्ति के खिलाफ है, जो कड़वाहट हमारे दिल में उनके लिए है, उसे हम जाने देते हैं. Or it could be anger, depending on the person. और हो सकता है वो हम उनसे बहुत गुस्से में हैं, तो उसे भी हमें छोड़ना चाहिए. You know, we let go of our plans for taking revenge or retaliating. और जो भी हमने योजना बनाई है कि इस व्यक्ति का से तो मैं बदला लेके रहूंगा, उस योजना को हमें छोड़ देना चाहिए. Or in other words, we let go of the feeling that they owe me something. या तो इस बात को, इस भावना को या इस धारणा को हमें छोड़ देना चाहिए कि वो मेरा ऋणी है, वो मेरा कर्जदार है और इसीलिए मैं उसे जाने दूं. But in your mind you're thinking that they don't deserve it. They deserve to be punished or they deserve to be, dealt with very severely. और आप मन में ये तो सोच रहे होंगे कि उस व्यक्ति को मैं ऐसी छोड़ नहीं सकता हूँ, उसका तो न्याय होना चाहिए. I've heard that statement many times. मैंने ये बात बहुत बार सुनी है. And I can understand the feeling of the person. और मैं आपकी जो भावनाएं हैं उसे समझ सकता हूँ. But you know what? Forgiveness is a gift. क्या आप जानते हैं क्षमा करना एक भेंट देने की तरह है. And you can give that gift of forgiveness to the person who offended you or hurt you. जिस व्यक्ति ने आपको घायल किया, चोट पहुंचाई, आपका अपमान किया, आप वो तोहफा उन्हें दे सकते हैं. You might be thinking, I don't feel like forgiving. और आप सोचते हैं मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है दिल में कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा करूं. Yeah, I don't feel like forgiving. I feel anger, I feel pain, but I don't feel like forgiving. और आप सोचते होंगे कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि मैं इस व्यक्ति को क्षमा करूं या नहीं करूं. मेरे अंदर तो ज्यादा गुस्सा है कि मैं उसके खिलाफ, उसकी तरफ मैं बहुत गुस्से में हूं. I understand that as well. ये बात भी हम समझते हैं. But forgiveness need not be based on your feeling. परंतु क्षमा करना जो है, आप किस तरह से महसूस करते हैं, आपकी भावनाओं के संग क्या हो रहा है, उस पर निर्भर नहीं है. You can choose in your mind. It's a decision that you can make. I don't feel like forgiving, but I choose to forgive. और आपको ये जो निर्णय है अपने मन से लेना है कि मेरी भावनाओं की तरफ से, मेरी इच्छाओं की तरफ से मैं नहीं चाहता कि मैं इस व्यक्ति को माफ करूं, परंतु मैं अपने मन से ये निर्णय लेता हूँ कि मैं चुनाव कर रहा हूँ उसे क्षमा करने के लिए. And we set them free. और हम उन्हें आजाद करते हैं. They don't owe us anything. अब वो हमारे ऋणी नहीं रहे, वो हमारे कर्जदार नहीं रहे. It does not mean that you forget. ये तो नहीं है कि आप कुछ बातें भूल जाएंगे, but we just refuse to bring it up again. परंतु उस बात को हम फिर कभी छेड़ते नहीं है. Or we don't hold it against that person. या उस व्यक्ति के खिलाफ अब भी हम उस बात को लेकर उनसे हम नाराज नहीं होते. Or even you don't hold it against yourself. या आप उस बात को लेकर अपने तरफ भी कोई नाराजगी नहीं रखते हैं. We hear this term, forgive and forget. हम कई बार लोगों से सुनते हैं कि वो कहते हैं कि क्षमा करो, भूल जाओ. I believe in the first part, yes, forgive. और मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि क्षमा करो, हाँ करो. But honestly, you never forget what happened. परंतु अगर सच्चाई में देखा जाए तो हम किसी बात को भूलते नहीं है जो हमारे संग हुआ है. And I'm not saying that God is going to delete your memory. He's not going to do that. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपके दिमाग से, आपके मन से जो है इस घटना को, इस बात को एक तरह से साफ कर देंगे. You will still remember what happened to you. जो घटना हुई थी, जो बातें आपके साथ हुई थी, वो बातें तो आपको याद रहेगी. But the things that are attached to that memory, like pain or hurt or anger, that will no longer be there. और उस घटना को लेकर या उस बात को लेकर जो आपके मन में, आपके दिल में कड़वाहट थी, जो गुस्सा था, जो चोट पहुंची थी, वो सारी बातें जो है अब नहीं रहती है.
Now I know a lot of things are happening in your heart right now. अब मैं जानता हूँ आपके दिल में बहुत हलचल हो रही है, There's a stirring happening. एक हलचल हो रही है। Some old painful memories may have surfaced. हो सकता है कुछ पुरानी यादें फिर याद आ गई। That just means that God is speaking to you and He wants to do something beautiful in your life. अगर ऐसा हो रहा है तो इस बात को मानकर चलिए कि परमेश्वर आपके जीवन में एक खूबसूरत मोड़ लेकर आना चाहते हैं और इसीलिए ये कार्य आपके दिल में शुरू हुआ है। This is the end of part 1. और पहले भाग का आज हम समाप्ति यही करेंगे। And I'm sure you want to know the rest of this talk. और मुझे विश्वास है कि आप जो आगे इसका जो दूसरा भाग है वो भी सुनना चाहेंगे। We'll be talking further on this. इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। He understands what you're going through. आप जिन हालातों से गुजर रहे हैं वो समझते हैं। He was there when you had gone through the pain and the hurt. और जब आप उस घाव से, उस चोट से जब आप गुजर रहे थे, उस हालात से गुजर रहे थे, तो यीशु आपके साथ वहाँ खड़े थे। And He wants to bring you out of it and heal your heart and fill it with love, joy and great peace. और वो जो है आपको उन हालातों से बाहर निकालना चाहते हैं और आपके दिल को चंगाई देना चाहते हैं और उसे अपने प्यार से, अपने आनंद से और अपनी शांति से भरना चाहते हैं। But what we want you to do is write down on a piece of paper all the names that might come to your mind as you've been listening to us today. और हम चाहते हैं कि इस हफ्ते के दौरान आप जैसे आज हमको सुन रहे हैं और ये बातें आपको याद रहे, तो आप उन लोगों का नाम एक पर्चे पर लिख लीजिए। This is just for you, ये केवल आपके लिए है, between you and God. आपके और परमेश्वर के बीच में। Next week we'll tell you what to do with it. और उन लोगों का नाम जिन्हें आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उनका नाम इस पर्चे पर लिख कर रखिए। अगले हफ्ते हम आपको बताएंगे कि इस पर्चे के साथ में, उन नामों के साथ में आपको क्या करना है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for your word. पिता, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We pray for all those who are watching us today. और जो लोग आज इस बात हमें देख रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। God, would you help them to write down the names of the people who have hurt them and offended them, and it's still they carry it in their hearts. परमेश्वर, क्या आप इन लोगों की मदद करेंगे उन लोगों का नाम उस पर्चे पर लिखने के लिए जिन लोगों ने उन्हें जो है घाव पहुंचाया था, चोट पहुंचाई थी, उनका अपमान किया था और उस बात को लेकर आज भी ये व्यक्ति अपने दिल में उसे लेकर चल रहे हैं। We commit each and every one of you into your hands, O God. आज हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। Keep them protected from this pandemic. और इस महामारी से परमेश्वर उन्हें बचा कर रखिए। Guard their hearts and minds in Christ Jesus. और मसीह यीशु के द्वारा उनके दिलों को और उनके मनों को परमेश्वर सुरक्षित रखिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। We'll meet again next Sunday. हम अगले हफ्ते रविवार को फिर एक बार मिलेंगे। Until then, तब तक God be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेंगे।